So let's start with the next lecture, in which we are going to discuss today about the solution of current in RLC series circuit. Okay, so before discussing the RLC series circuit, we will discuss the current in the purely resistive circuit, purely inductive circuit, and purely capacitive circuit. Okay, so let's start. First of all, we will discuss about purely resistive circuit. Purely resistive circuit. So since in an AC circuit we have resistance, inductance, and capacitance. Okay, so let's draw the circuit diagram first of all. This must be voltage with angle 0. We have taken the voltage as a reference phasor. Okay, there should be the current, and since it is a purely resistive circuit, so resistance only. Okay, so let's consider this as a figure number 1. Okay, next we will draw the waveform. Okay, we should consider like this. So this is your voltage, this is your current. Okay, and you know that this must be the maximum value of the voltage and the current, Vm and Im, at 90 degree. Okay, and it is 180 degree, this is 270 degree, and this is 360 degree. Okay, and here it will be like this: voltage and current. This must be the voltage and current, both of them should be in phasor. मीन्स जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस के अंदर एज यू नो दैट वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर. ओके, यहाँ से अगर करंट वोल्टेज अगर देखें, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू द रेजिस्टेंस, और करंट अगर देखेंगे तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो गया आपका. ठीक है, तो वी आर जस्ट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट दिस. बिफोर दैट यू नो दैट वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज की वेव फॉर्म अगर ये है, तो उस वोल्टेज की वेव फॉर्म से अगर आप सिंपली रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो उतना एम्पलीट्यूड आपका यहाँ कम हो जा रहा है, तो दैट विल बिकम द करंट. ठीक है, तो इस वजह से वोल्टेज और करंट, और दे विल बी इन फेज in a pure resistive circuit. Why they will be in phase, we will discuss now how they will be in phase. Okay, so just remember all these figures. This will be figure number 1, this will be figure number 2, and this will be figure number 3. Okay, just do remember them. Now for the circuit shown in figure number 1, for the circuit shown
in figure 1, instantaneous value of current is given by instantaneous value of current is given by instantaneous of current is what? I is equals to V upon R. Now we have already discussed earlier that voltage, sinusoidal voltage, is given by Vm sine omega t upon resistance. Okay, so here from here we can see that Vm upon R into sine omega t. Okay, this will become Im sine omega t. Okay, so from here you can see that I become what? I become Im sine omega t, where Vm, this Vm and Im are the maximum value of the voltage and current. Okay. So the RMS value of the current is given by the RMS value of current is given by, now you know that RMS value of current should be equals to maximum voltage upon root 2. We have calculated it earlier, you can see from there. Sorry, Im upon root 2, not Vm. Okay, now Im is what? Im is simply voltage upon resistance. Maximum voltage upon resistance should be Im upon root 2. We can reshuffle this and this will become Vm upon root 2 divided by R. Okay, and this Vm upon root 2 will become V, means the RMS value of the voltage. So from here you can see that RMS value of the current is equals to RMS value of the voltage upon the resistance. So this is simply the RMS value of the current. Now in phasor notation, V, okay, since I is equals to V upon R only, so V is equals to V angle 0, because there is no angle difference between the voltage and the current, and we have taken a voltage as a reference. तो वोल्टेज जब हमने यहाँ पर एज अ रेफरेंस लिया है तो आपका एंगल 0 होगा, उसका रेफरेंस है वो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वहाँ पर हमने सर्किल बनाया था ना फेजर नोटेशन में दिखाने के लिए, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन था, तो यहाँ पर जैसे कि आपका ये OP हमने लिया था एज अ वोल्टेज, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन थी आपकी साइनसोइडल वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो ये हमने रेफरेंस लाइंस ली थी, तो दिस इज़ योर, सो ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, तो इसका रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल 0 है, तो V एंगल 0 इज इक्वल्स टू V1 प्लस J0, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू V प्लस J0। अब ये कैसे आया, ये भी पहले हम बता चुके हैं कि ये क्या होगा, सिंपली अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये आपका होगा V, अगर ब्रैकेट में ले लें आप, cos थीटा प्लस J साइन थीटा, ओके। सो व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो 0 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये cos 0 शुड बी 1, ओके, और साइन 0 शुड बी 0, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, तो जो हमने यहाँ 0 लिखा है, और ये आपका 1 हो गया, तो ये 1 लिखा है, ठीक है, तो ये इस तरह से आया है आपका। ओके, लाइकवाइज करंट अगर आप देखें यहाँ पर, तो करंट हमने ऊपर जो देखा, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आ रहा है, कोई एंगल नहीं है, ठीक है, तो करंट भी आपका उसी रेफरेंस लाइन से स्टार्ट होगा, मींस करंट का एंगल भी 0 होगा, तो करंट भी आपका यहीं लाई करेगा, ठीक है, इसी लाइन पे लाई करेगा। अगर आप देखें तो करंट भी आपका
इसी लाइन पे यहाँ लाई करेगा। इसका मैग्नीट्यूड बस कम होगा थोड़ा सा। मैग्नीट्यूड क्यों कम होगा? बिकॉज इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक है आपका, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो कुछ तो कम हो जाएगा ना ये, तो यहाँ तक आपका करंट रहेगा सिंपल, लेकिन उसी रेफरेंस लाइन पर रहेगा क्योंकि एंगल उसका भी जीरो है। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, सो आई 1 प्लस जे ज़ीरो, ये कैसे आए अभी बता चुके हम, तो दिस विल बिकम आई प्लस जे ज़ीरो। ओके, सो नाउ let's come to the impedance. So the impedance of the circuit is given by impedance of circuit is given by, now what is impedance? You almost have studied it कि जो आपका AC सर्किट होते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस इज सिंपली व्हाट, वोल्टेज अपॉन करंट। रेजिस्टेंस आपका जो होता है वो यहाँ से अगर देखें तो वोल्टेज अपॉन करंट ही तो निकल कर आता है। बट इन AC सर्किट के अंदर असल में रेजिस्टेंस भी होता है और जो है फिर वो इंडक्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है। तो इन सब का जो रिएक्टेंस है वो हम देखेंगे आगे कैसे निकलता है। तो इन सब का रिएक्टेंस को मिला के वो इम्पीडेंस बनता है। ठीक है, इम्पीडेंस AC सर्किट के अंदर, तो AC सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की जगह जो इम्पीडेंस होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अपॉन द करंट, वी कंसिडर इज लाइक दिस। ओके, तो ये आपका इम्पीडेंस होता है सिंपली वोल्टेज अपॉन करंट। तो द इम्पीडेंस इज गिवन बाय Z is equals to voltage upon current. Okay, and what will be V angle 0 upon I angle 0 is equals to R plus J0. Now you can see that it can be observed from the waveforms. ऊपर जो हमने सबसे पहले वेवफॉर्म्स बनाई थी ये यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये वेवफॉर्म से आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड फिगर बनाई है, इस सेकंड फिगर में आपका वोल्टेज और करंट दोनों फेज़र में है, मतलब 0 डिग्री एंगल डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि जहाँ से आपका ये वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपका करंट स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ ये मैक्सिमम है उसी एंगल पे दोनों मैक्सिमम है, तो लाइकवाइज दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली। बस मैग्नीट्यूड इसका जो एम्पलीट्यूड जो होता है करंट का वो आपका कम है यहाँ पर, और वो इसीलिए क्योंकि करंट जो होता है वो सिंपली वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो दे आर बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन फेजर। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर आपका वोल्टेज और करंट दोनों फेजर में उसमें जीरो एंगल डिफरेंस के साथ रहते हैं। So from you can write it, it can be observed from the waveform and the phasor diagram that the voltage and the current are in phase. Voltage and current are in phase is phi is equals to angle 0. Phi is simply what? Phi is the angle difference between the voltage and the current. Okay, so this will be 0 over here. Okay, now let us consider the second case, that is purely inductive circuit. Okay, second is सो इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, बिकॉज इट इज़ प्योरली इंडक्टिव मीन्स सिर्फ इंडक्टेंस है इसके अंदर, रेजिस्टेंस नहीं है, तो वी मेक अ सिंपल सर्किट ऑफ दिस। So only inductance will be there. Okay, so this is your inductance, this is the I is the current flowing through this circuit, and this is the voltage. Okay, now we are just making the waveform over here, जो waveform आपकी बाद में आनी है निकल कर। Okay, so this one is the voltage waveform, and
Okay, this must be pi by 2, this will be pi by 2, pi 3 pi by 2, 2 pi. Okay, these are the angles. This must be your voltage waveform, this must be your current waveform. ये आपका Vm हो जाएगा, maximum value of the voltage. This must be Im, maximum value of the current. Okay, और ये आपका ये हो गया, ठीक है. We are also going to make the phasor diagram of this. Okay, so this must be the voltage and this must be the current, and the angle between both of them should be 90 degree. Okay, let us consider again. This must be the figure number 1, figure number 2, figure number 3. Okay, so these are the three figures. So simple, this is a circuit diagram. Okay, this must be the circuit diagram of purely inductive circuit, because only inductance is there, सिर्फ inductance उसके अंदर है. और ये उसका जो वेवफॉर्म्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब इंडक्टेंस होता है तो इंडक्टेंस में आपका करंट 90 डिग्री लैग करता है. लैगिंग मीन्स पीछे चलता है. अब पीछे चलने का मतलब क्या है कि जब वोल्टेज आपका ज़ीरो होगा तो 90 डिग्री बाद करंट ज़ीरो होगा. वोल्टेज जिस एंगल पे आपका मैक्सिमम होगा 90 डिग्री बाद करंट मैक्सिमम होगा. अगेन जब वोल्टेज आपका ज़ीरो होगा उसके 90 डिग्री बाद अगेन करंट आपका ज़ीरो होगा. और इस फिगर में आप ये देख सकते हैं इस वेव फॉर्म के अंदर यहाँ आपका इस पॉइंट पे हुआ ज़ीरो एंगल है. ज़ीरो एंगल पर आपका वोल्टेज ज़ीरो है. ठीक, साइनोसॉइडल वेव इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले किस तरह आती है. ठीक, तो यहाँ ज़ीरो एंगल पर आपका वोल्टेज ज़ीरो हुआ, इसके 90 डिग्री बाद करंट ज़ीरो होगा. क्यों? क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट आपका 90 डिग्री लैग करता है, पीछे चलता है. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री के बाद में अब आपका करंट ज़ीरो हो रहा है. ये 90 डिग्री एंगल पर आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, उसके 90 डिग्री बाद मीन्स एट 180 डिग्री एंगल यहाँ पर आपका करंट मैक्सिमम हो रहा है. ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी करंट वेवफॉर्म जो होगी वो वोल्टेज वेवफॉर्म से 90 डिग्री पीछे चलेगी. ठीक है, हर चीज़ उसमें 90 डिग्री बाद होगी. तो दिस इज सिंपली योर प्योरली इंडक्टिव सर्किट. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर how all these things come. So for the circuit shown in figure, you can write from circuit shown in figure 1, the current is obtained, the current is obtained as now you can see that V is equals to voltage, this must be equals to L di by dt. अब and this voltage should be equals to Vm sin omega t. Now understand this thing, ये चीज़ समझिएगा. अब है क्या, अब आपका ये जो सर्किट है आपका सिंपली, ठीक है, ये जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया है इसमें वोल्टेज है आपका. अगर आप इसमें KVL लगाते हैं, यहाँ KVL लगाते हैं तो KVL इज सिंपली व्हाट, सम ऑफ द वोल्टेजेस इन दिस लूप शुड बी जीरो. KVL जो होती है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. एक पर्टिकुलर लूप जो होता है उसके अंदर आपका वोल्टेज का जितना भी सम आएगा निकल कर वो जीरो आएगा क्लोज लूप के अंदर. ठीक है, तो इसके अक्रॉस यहाँ वोल्टेज सोर्स आपका V है तो V, और ये आपका यहाँ जा रहा है, इसके थ्रू आपका वोल्टेज कितना है, इंडक्टेंस के थ्रू वोल्टेज कितना होता है, इंडक्टेंस के थ्रू वोल्टेज होता है वो आपका L di by dt होता है. तो इसके थ्रू आपका वोल्टेज जो है वो L di by dt है. ये आप पुरानी बुक में कहीं देखिएगा. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल इन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो L di by dt आपका वोल्टेज होता है अक्रॉस इंडक्टेंस. तो अगर आप ये करते, अगर यहाँ आप KVL लगाते तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V होता माइनस इसका डायरेक्शन असल में ये सोर्स है और ये आपका लोड है, इंडक्टिव लोड लगा हुआ है. ठीक है, तो सोर्स इसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा. ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स माइनस द वोल्टेज अक्रॉस द लोड
इसको जब लोड कर, ये ज़ीरो होना चाहिए आपके, ठीक है। क्लोज सर्किट के अंदर वोल्टेज का सम आपका ज़ीरो होना चाहिए। तो अब ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जब ये इधर गया तो ये एल डी आई बाई डी टी हो गया। और वोल्टेज हम जानते हैं, वोल्टेज हमारा किसके बराबर होता है, वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक है। तो दिस v इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रीशफल दिस एंड सिंप्लीफाई दिस। तो अब जब आपको इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिंपल लगानी होगी, तो यहाँ से डी आई आपका क्या हो जाएगा, डी आई आपका ये हो जाएगा कि जैसे कि आपका यहाँ डी आई है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एम, डिवीजन में आपका इंडक्टेंस आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी है आपका, और ये इधर आके डी टी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस। इस पे इंटीग्रेशन जब आप लगाएंगे, तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लगाएंगे आप, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। मैं यहीं लगा देता हूँ इसको, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। साइन ओमेगा डी टी, डी टी है आपका, ठीक। तो अब जब इसको करेंगे तो डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये सिंपल आपको आई देगा, ठीक। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी एम अपॉन एल जो है वो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका बाहर आ गया, क्योंकि इन दोनों में कहीं टी तो है नहीं, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट हुए इसके रिस्पेक्ट में। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये डिवीजन में आ जाता है, अपॉन ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या निकल कर आया आपका, वी एम अपॉन ओमेगा एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी था, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको हम साइन की फॉर्म में हमने कर लिया, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये फॉर्मूले आपने पहले सारे पढ़ रखे हैं, आई प्री अज्यूम दिस, और ये आपको याद होना चाहिए सब, कि साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आई आपका करंट क्या निकल कर आया, करंट शुड बी, अब इसको हमने मान लिया वी एम अपॉन ओमेगा एल, ये हमने मान लिया, दिस विल बी इक्वल्स टू आई एम, ठीक है। तो दिस विल बिकम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ओके। जहाँ पर आपका आई एम क्या है, वेयर आई एम इज वी एम अपॉन ओमेगा एल, ऑलराइट। नाउ अब क्या है, अब यहां से आप ये देख सकते हैं, इट मे बी नोटेड दैट द करंट आई इज द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन नेग्लेक्टिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी आरएमएस वैल्यू वगैरह जैसे हमने पहले निकाली थी वो हम निकालते हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सो करंट इज लैगिंग बाई एंगल 90 डिग्री, ठीक है। करंट जो है वो आपका 90 डिग्री पीछे चल रहा है यहाँ पर, ओके, अंडरस्टैंड। सो लेट्स राइट डाउन द इम्पीडेंस। Impedance of the circuit is given by Z which is equals to V upon I, ठीक है। वोल्टेज तो आपका रेफरेंस माना है तो उसका तो एंगल जीरो ही रहेगा, और करंट आपका क्योंकि 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, ठीक है। इसका ये होगा, इसको आप रख सकते हैं V अपॉन माइनस जे आई, ओके। दिस विल बिकम, अब यहाँ पर ये कैसे, तो अब सिंस I इज इक्वल्स टू व्हाट, I इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन एल है, तो I को अगर आप V अपॉन ओमेगा एल रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिंपली V अपॉन माइनस जे, और I की जगह आपने रखा V अपॉन ओमेगा एल, तो ये सिंपली आपका बन जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जे ओमेगा एल, ये माइनस जे है तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 0 प्लस जे ओमेगा एल, और ओमेगा एल को हम लिखते हैं, यहाँ हमने नहीं लिखा था, ओमेगा एल कैन बी रिटन एज एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है ये, ठीक है। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा 0 प्लस जे एक्सएल, ओके। सो दिस इज योर you can say that impedance of an inductive circuit, okay।
और जैसे यहाँ पर करा था कि वो ओमेगा एल जो होता है वो आपका यू कैन रिटन लाइक, सो यू कैन राइट डाउन दिस ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल, एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल विच इज इक्वल्स टू पाई एफ एल। ओमेगा को हमने पहले भी हम देख चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये 2 पाई एफ एल हो जाता है एक्स एल आपका। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब ये जैसे हमने यहाँ पर लिखा था आई इज इक्वल्स टू, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, वही हमने वेव फॉर्म पहले जो बनाई थी वो ये है कि वोल्टेज वी हैव कंसिडर ऑन द रेफरेंस पॉइंट, ये आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में ये आपकी वोल्टेज वेव फॉर्म जो जा रही है, करंट वेव फॉर्म 90 डिग्री लैग कर रही है, मीन्स अब 90 डिग्री के बाद में आपकी करंट जीरो होगी, 90 डिग्री बाद में करंट आपका मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज, सो इट विल मूव 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेजेस। ओके, सो दिस इज in case of purely inductive circuit. Okay, so now let's and one more thing you can see over here, we have already drawn this voltage and current phasor diagram, that voltage, when voltage is moving we have taken as a reference, तो करंट जो होगा आपका 90 डिग्री पीछे मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द थर्ड वन, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, sorry, purely capacitive circuit. Inductive circuit we have already discussed. Purely capacitive circuit. Okay, now what happened in purely capacitive case? First of all, let's draw the circuit diagram, simple circuit diagram of purely capacitive circuit. Only capacitance will be there, so this is the voltage, this is the capacitance, and this must be the current flowing through it. Okay, now again let's draw the waveform. Okay, this is what this is voltage. We will discuss now how that voltage and the current, what is the angle difference between that. First of all, we are going to draw just a waveform of this. So this is 90 degree, this must be pi by 2, this must be pi, this must be 3 pi by 2. Okay, so we are drawing the waveform of current also. Later on we will discuss and came to know about it, how the waveform of current should be leading over here. It will be approximately like this. Okay, so this is your voltage and this is your current. Okay, sorry, this must be your current. Okay, so अब हमें ये हम अभी आगे जब पढ़ेंगे तो वी विल केम टू नो दैट करंट शुड बी लीडिंग इन कैपेसिटिव सर्किट। लीडिंग मीन्स वो आगे चल रहा है आपका वोल्टेज से, तो करंट जब लीडिंग है तो लीडिंग मीन्स व्हाट, करंट जो होगा आपका मैक्सिमम 90 डिग्री पहले हो जाएगा, करंट आपका 90 डिग्री पहले हो जाएगा, करंट अगेन आपका 90 डिग्री पहले हो जाएगा, लाइकवाइज। सो एट जीरो एंगल यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर आपका करंट मैक्सिमम हो चुका है, ठीक, करंट इज मैक्सिमम। इसके 90 डिग्री बाद यहाँ पर वोल्टेज आपका मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो अब वोल्टेज हर 90 डिग्री के बाद में वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आएगा जहाँ पर करंट पहले आ चुका होगा। मींस करंट आपका पहले हो रहा है और मैक्सिमम और जीरो, और वोल्टेज आपका 90 डिग्री बाद हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर इसकी फेजर लाइन बनाएंगे, so if you consider this voltage as on a reference line, then this should be the current 90 degree ahead of voltage, के 90 डिग्री आगे चलेगा। So again we consider this figure number 1, figure number 2 and figure number 3. Okay, so let's move forward with this. Now for the circuit shown in figure number 1, the current I is given by, current I is given by I is equals to C dV over dt. ओके, करंट जो होगा आपका कैपेसिटेंस के थ्रू क्या होगा, I इज इक्वल सी डी वी ओवर डी टी। अब इसको अगर आप करें तो C
वोल्टेज आपका क्या है, वोल्टेज हम पहले आपको बता चुके हैं, वोल्टेज मस्ट बी Vm साइन ओमेगा टी। ओके, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ से आप इसको सिंपली अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा निकल कर आपका, C इंटू वी एम डी ओ डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी शुड बी साइन ओमेगा टी शुड बी कॉस ओमेगा टी, और फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमेगा टी को तो ये यहाँ ओमेगा आ जाएगा। तो C वी एम इंटू ओमेगा साइन कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को आप इसको रिशफल कर दिए, ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम, इसको साइन फॉर्म में लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो योर करंट कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। वेयर नाउ वी कैन राइट दिस, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, where Im is omega into C into Vm. Okay, so from here you can see that यहाँ पर करंट जो है आपका वो चल रहा है प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री आगे, मीन्स करंट आपका लीडिंग है, जैसा कि हमने अभी यहाँ ऊपर फिगर में डिस्कस किया था। तो करंट आपका लीडिंग है और ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज बीइंग प्रूव्ड ओवर हियर। नाउ what should be the impedance? Now the impedance of the circuit is given by Z is equals to voltage upon current. Okay, voltage must be reference 0 and current must be what? Current must be moving 90 डिग्री ahead, तो ये 90 डिग्री होगा प्लस 90 डिग्री। वहाँ हमने कितना लिया था, माइनस 90 डिग्री, क्योंकि वो पीछे चल रहा था। अब इसको आप V अपॉन जे आई भी लिख सकते हैं इन जे नोटेशन इफ यू। और यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका I क्या था, I जो था आपका यहाँ पर ओमेगा सी वी एम था, तो यहाँ पर ओमेगा सी वी आ जाएगा। तो वी से वी आपका जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचेगा खाली जे ओमेगा सी। इसको आप जे को अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। ओके, एंड दिस विल बिकम 0 माइनस जे 1 अपॉन ओमेगा सी एंड 0 माइनस जे एक्स सी। ओके, where capacitive reactance xc will be equals to what, 1 upon omega c, and this will be equal to what, 1 upon 2 pi fc. okay, this is being clear over here. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपका जो करंट है, करंट आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है। यहाँ से आपका कैपेसिटेंस हमने ये निकाल लिया और ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये आ रहा है। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव ओवर हियर दैट वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स आर हियर एंड योर करंट वेव फॉर्म इज लीडिंग बाय 90 डिग्री इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ओके, सो in this lecture we are going to discuss this much, and in the next lecture we will discuss the combination of this. There's a solution of current in series RLC circuit and parallel RLC circuit. Any problem you can write on the group or you can write to me. We will take those problem. Okay, thank you.